السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، ہماری عید کیسی ہونی چاہیے؟ ہم عید گزارنے جا رہے ہیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں، تو عید ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے جس بات کو مد نظر رکھنا ہے اور اسے بھولنا نہیں ہے کہ اپنی خوشیوں کو اللہ رسول کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی ملتی تو سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، نماز شکرانہ۔ تو جب بھی آپ کو کوئی خوشی ملے تو خوشی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، اس میں اپنے رب کو نہ بھولیں، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملتی، سیدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو خوشی ملتی تو فخر للہ ساجدہ، اللہ کے رسول سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو اپنی خوشیوں میں اللہ رسول کے طریقے کو بھولنا نہیں ہے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ نمازوں کی پابندی کریں، فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی خوشی میں اللہ کی نعمتیں استعمال کریں، اللہ کی رحمتوں کو دیکھیں، لیکن فرض نماز پنجگانہ اس کو بھول جائیں۔ نماز پنجگانہ ضرور ادا کریں، خصوصاً عید کے دن تو اللہ کی رحمت، فضل، کرم کی برکھا برسری ہوتی ہے۔ تو وہاں ایک آدمی بے نمازی ہو تو یقین کریں یہ بہت بری اور بدی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے عید سے پہلے ذوالحجہ کے دن ہو یا رمضان کی عید ہو یا قربان عید ہو، دونوں میں پریکٹس کروائی جاتی ہے نیک اعمال کی۔ ذوالحجہ کے پہلے 9 دن بھی نیک اعمال کی پوری پریکٹس ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی چھوٹی عید جو ہے اس میں بھی رمضان المبارک میں نیک اعمال کی پریکٹس ہے۔ تو وہاں تیسرا کام جو کرنے والا ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، جو اپنے چھوٹے چھوٹے کام سیکھے ہیں اس کے اوپر دوام لاؤ، خوشیوں میں وہ بھولو نہ۔ مثلا آپ ذکر کرنا شروع ہو گئے ہیں تو ذکر کی عادت آپ کو عید والے دن بھی رہنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کی عادت ہے تو قرآن مجید کی تلاوت آپ عید والے دن بھی، بھلے آپ تھوڑی کرو زیادہ کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کلمہ خیر بولنے کی عادت آ گئی ہے تو کلمہ خیر کہنا یہ آپ کے لیے عید والے دن بھی ضروری ہے۔ آپ اپنے بھائیوں کو یہ بھولا ہوا سبق یاد کرواؤ، آپ تذکیر کرواؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے والا ہے، چوتھا کام، اپنے ناراض احباب ان کو منانے کی کوشش کریں۔ ناراض احباب سے صلح کیجیے۔ آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست احباب ہو سکتے ہیں، آپ کے قریبی جو عزیز ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے دار ہو سکتے ہیں، آپ کے نوادی ہو سکتے ہیں، جو بھی آپ سے ناراض ہیں ان کو آپ منائیے، صلح کروائیے۔ اور اگر خود ناراض ہیں تو خود صلح کر لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرہما الذی یبدأ بالسلام، 2 صلح کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو سلام میں پہل کر دیتا ہے۔ افشوا السلام، سلام کریں۔ آپ یقین کریں اس نسخے کو لے کر استعمال کر کے تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ سلام میں پہل کریں گے تو وہ خود ہی کہنا شروع ہو جائے گا کہ میں بھی آپ سے سلام لینے والا تھا، میں بھی آپ کو سلام کرنے والا تھا، لیکن آپ نے سلام کی ابتدا کر لی۔ تو اپنے ناراض احباب کو اپنی عید کی خوشیوں میں منانے کی اور ان سے صلح کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5واں غالباً کام ہے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین ہاکذا۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا۔
गोया के यतीम की किफालत से जन्नत भी मिलती है और यतीम की कफालत में जन्नत में रफाकत नबी भी मिलती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी मिलता है। यतीमों पर शफकत का हाथ रखने की सूरत क्या हो सकती है? उनको कपड़े, नए जूते, नए कपड़े, नई ज़रूरियात ज़िंदगी जो भी है, जो अपने बच्चों के लिए आप लेते हैं, उनके लिए भी आप लेने की कोशिश करें। उनको कपड़े ले दो, उनको जूते ला दो, उनको खाने पीने की अशिया ला दो, उनको कुछ नगद पैसे रुपए दे दो। यकीन करें आपको इस काम से इतनी खुशी मिलेगी और आपकी इतनी खुशियां दबाला हो जाएगी, आपके घर में रहमत हो जाएगी जो आम खुशी में, आम ईद में आपको नहीं हासिल हुई। तो जो आदमी भी यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखता है, उनकी दिलजोई करता है, उनके हौसलों को बढ़ाता है और उनकी हौसला अफजाई करता है, अल्लाह उनकी खुशियों को और चार चांद लगा देता है। और इसके साथ साथ बेवा औरतें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखो। बेवा औरतों की ज़रूरियात और मस्कीनों की ज़रूरियात को पूरा करने वाला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह, वो ऐसे है जैसे राह जिहाद में निकल पड़ा है। जो यतीमों की, बेवाओं की मदद के लिए निकलता है, वो ऐसे है जैसे वो राह जिहाद में निकल गया, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है। और इसके साथ अविल कायमिल लैल, या ऐसे है जैसे वो रात का क्याम करने वाला है, या ऐसे है जैसे अस्साइमिन नहार, वो दिन का रोजा रखने वाला है। कितनी बड़ी बात है। बेवाओं के सरों पर शफकत का हाथ रखने वाला मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की तरह है और साइमुन नहार है और काइमुल लैल है। तो ये काम भी बहुत बड़ी बात है। वगरना यतीमों, मस्कीनों और बेवाओं की ईद, यकीन करें वो अपनी ईद की खुशियों में अलग थलग बैठ के इन मसाइल की वजह से रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं। उनके आंसुओं को अंदर से कोई देख नहीं रहा होता, उनके आंसुओं को कुछ साफ नहीं कर रहा होता। वो देखने में हंस रहे होते हैं लेकिन अंदर से मिट चुके होते हैं। जब आप उनके सरों पे शफकत का हाथ रखेंगे तो वो अंदर से भी खुश हो जाएंगे और बाहर से भी खुश हो जाएंगे। उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाएंगी। और जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहटें लाता है, अल्लाह उसके जाहिर और बातन के अंदर मुस्कुराहटों की सूरत चढ़ा देता है। उनके दिलों के अंदर मुस्कुराहटों के पूरे पूरे बल्ब जलते हैं। आप ये काम इस ईद में करके देखिए। फिर उसके बाद गरीब मसाकीन की दिलजोई आप गोश्त के साथ कर सकते हैं। गरीबों को गोश्त हम असर के बाद, मगरिब के बाद दूसरे दिन देते हैं। आप अपनी पहली हंडिया में उन लोगों को भी, गरीबों मस्कीनों को भी अपने गोश्त में याद रखेंगे तो यकीन करें ये बहुत बड़ी नेमत और रहमत है। अगर आप ये कर सकें तो ये भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ अगर इज्तिमाई तौर पे भी एक अलग से बड़ा या छोटा जानवर इस तरह ज़बह किया जाए कि वो अव्वल वक्त में ज़बह कर दिया जाए और साथ ही फौरन 7-8 बजे पका के लोगों के घरों में पका हुआ पकवान खाना घर में भेज दिया जाए, तो गरीब ईद वाले दिन अंडे खाते हुए, गरीब ईद वाले दिन मुर्गियां ज़बह करते हुए दिखाई नहीं देंगे। उनको पता है कि हमें जो गोश्त आना है वो भी बचा कुचा आना है और वो भी असर के बाद आना है। तो गरीबों के लिए ये बड़ा मसला है। आप जहाँ अपने लिए फिक्रमंद होते हैं, अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होते हैं कि उनको ईद नमाज होते ही साथ ही गोश्त खिला दिया जाए। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखी हत्ता युहिब्बु लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी। आप अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो ये काम भी बहुत अहम है। और इसके साथ साथ बीमारों की तीमारदारी को ना भूले। बीमार चारपाई पे जीते जी मर जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, सर पे शफकत का हाथ रखने वाला नहीं होता, दिलजोई करने वाला नहीं होता, उनको हौसला देने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से बीमार और मजीद बीमार हो जाते हैं। जिस वक्त एक बीमार आदमी के पास 2-4 भाई मिल के चले जाएं और कुछ तोहफा तहफ, वो तोहफा दे दें, कुछ तहफ दे दें, कुछ पैसे रुपए दे दें और साथ सिर्फ इतना कह दें, सिर्फ एक जुमला कह दें कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। आप किसी मुश्किल घड़ी में आप मुझे आवाज दें, फोन करें, मैं आपके साथ हूं। यकीन करें वो अगर बूढ़ा बीमार भी है तो नौजवानों की तरह खिलखिलाता हुआ, फूलता हुआ, फूलों की तरह चमकता हुआ
वो मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। आपका ये एक जुमला मुसलमानों के दिल जीत सकता है, एक जुमला बीमारों को हौसला दे सकता है, एक जुमला बीमारों को सेहतमंद बना सकता है। तो आप अपने मुसलमान भाइयों की तीमारदारी करें। और वैसे भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, हदीस भी है। आपने फरमाया जो आदमी किसी बीमार के पास जाता है और उसके पास तीमारदारी करता है, दुआ देता है, ला बास ताहुरुन इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा दी बिलबास रब्बन नास, तो 70,000 फरिश्ते 70,000 फरिश्ते, अगर सुबह के वक्त आपने तीमारदारी की है तो 70,000 फरिश्ते शाम तक आपके लिए खैर की, बख्शिश की, मगफरत की और रहमत की दुआ करते हैं। और अगर आपने ये काम शाम के वक्त किया है तो शाम के वक्त आपके लिए 70,000 फरिश्ते सुबह तक दुआ करते हैं। और इसके बाद साथ साथ आखिरी दुआ, आखिरी काम, अपने फौज शुदगान भाइयों को अपनी दुआओं में भूले नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने फौज शुदगान को आप अपनी दुआओं में भूल जाए। अपने फौज शुदगान को दुआओं में याद रखें, उनके लिए दुआए खैर करें, उनके लिए दुआए मगफरत करें, उनके लिए दुआए जो है रहमत करें, दुआए फजल करें। या अल्लाह उनके लिए रहमत फरमा, उनके फजल फरमा, उनकी कब्र हशर मंजिलों को आसान फरमा, उनके महशर के मैदान की सख्तियों को नरमी में तब्दील फरमा। ये तमाम वो काम है जो इंतहाई ज़रूरी हैं। आपस में मिल बैठने का वाला भी काम, इत्तफाक इत्तेहाद वाला काम, और फिर इसके साथ साथ आखिरी काम, किसी भी खराफात से आपने बचना है, बिदातों खराफात से बचना है। अल्लाह की जो वो अहकामात हैं जो मनहियात से मुतल्लिक़ हैं, मसलन म्यूज़िक है, नाच है, गाना है, बाद ऐसे खेल हैं जिससे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो गोया कि कुछ नेक काम इफ़अल की सूरत में जो करने वाले हैं उनको करके रब को मनाना है, और इसी तरह इफ़ ला तफ़अल की सूरत में जो ममनुआ काम है उससे बच के रब को मनाना है। ये काम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं अल्लाह से उम्मीद रहमत रखता हूँ और यकीन रखता हूँ कि आप इन कामों से अपनी ईद की खुशियों में अपने अर्श रब को भी जीत जाओगे और फर्श में मखलूक खुदा को भी जीत जाओगे। जो अर्श जी जाता है, फर्श जी जाता है, जहान उसी का होता है। हादा मा इंदी वल इल्मु इंदल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।